Hello everyone, welcome to the Q&A session 3 of JEE Physics. The topic is electrostatics, and today we will try to solve 3 questions uh, which were asked in the JEE examination. The first question is written here. The question is a uniformly charged thin spherical shell of radius r carries a uniform surface charge density of sigma per unit area. It is made of two hemispherical shell held together by force F. Now this is an external force which has been applied against the repulsive electrostatic force, because this shell has got a uniform charge, means it is uniformly charged, and therefore because it is uniformly charged and it is carrying the same charge throughout its surface, therefore the two hemispherical shell, they will be having the same charge on the outer surface, and as a result of that there will be a repulsive force between these two hemispheres. So for the most important thing here is that we should know the formula for the electrostatic pressure. Electrostatic pressure. The formula for the electrostatic pressure is equal to sigma square divided by 2 epsilon naught, where sigma is the surface charge density. ठीक है. अब because this shell is carrying a uniform charge over its outer surface, therefore the two hemispherical shell, they will be having the same charge. They will be having this, means the nature of the charge on both the hemispherical shell will be the same, and because of that there will be a repulsive force between these two hemispherical shell. So the repulsive force कितना हो जाएगा? Repulsive force, the electrostatic pressure यहाँ दिया हुआ है, so repulsive force क्या होगा? This pressure is equal to force per unit area. So this repulsive force will be equal to that is equal to pressure, that is equal to sigma square divided by 2 epsilon naught into the area of this hemispherical shell. Now the curved surface area, the curved surface of that is the curved, I'm just writing it here, the curved surface area of ए हेमिस्फीयर, ठीक है, वो होता है आपका दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. सो हम यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू दिस प्रेशर इनटू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर हेमिस्फीयर, विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस spherical shell. So this is equal to यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, this is equal to, ये 2 कैंसिल हो जाएगा and we will get as sigma square r square divided by and this will be equal to pi भी रहेगा, pi and epsilon naught. So this is the value of the repulsive force between these two hemispherical shell, because both these shells have got the same charge over its outer surface, and since the charge is, since this shell is carrying a uniform surface charge density, therefore the magnitude of the charge on both these spheres will be equal. ठीक है, इक्वल भी होंगे, एंड बिकॉज दे आर द लाइक चार्जेस, देयरफॉर
there will be a repulsive force between them. Now in order to we in order to this hold these two hemispherical shell together, we have to apply an external force F, and that external force F should be equal to this repulsive force. So that is force external, that is the external force which I will be applying in order to hold both these two hemispherical shell together will be equal to the repulsive force between them. So this external force will be equal to pi sigma square r square divided by epsilon naught. So इसमें ये लिखा हुआ है we have to find we have to find the value of f, that is f is proportional to what. So here आपको देखिए कि यहाँ पर जो मेरी f की जो वैल्यू आ रही है, f एक्सटर्नल जो हम लगाएंगे फोर्स, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट. यहाँ से क्या है, इफ दिस इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, देन अगर हम पाई हटा देते हैं देन क्या इट इज पाई, इट्स अ कांस्टेंट. सो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस external force which will be applied to keep these two hemispherical shell together will be proportional to ये आ जाएगा sigma square r square divided by epsilon naught. Now in this question the most important thing was that you should know the formula for the electrostatic pressure which is equal to sigma square divided by 2 epsilon naught. इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं बिकॉज यहाँ से मैंने जो है एक रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू निकाल लिया एंड दिस हैज़ टू बी इक्वल टू दी एक्सटर्नल फोर्स. और ये निकालने के बाद में देन वी वर एबल टू फाइंड दी दिस एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. So this was a very easy question. It was not at all a difficult one. The only thing is that you should know the formula for the electrostatic pressure. Now I am writing a second question. Again, that is also a very easy one, easy question, and it was also asked in the JEE examination in 2010. The question is, this is the question. Electrical field lines for a system of two charges. यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, पहले बस फिगर को बना देता हूँ. यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 है और एक Q2 है, ऐसे लिखा हुआ है. इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये दो चार्जेस हैं जिसके ये दिस इज Q1 है और इसमें से आपकी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, 1 2 ऐसे करके दिया हुआ है. एंड 3 लाइक दैट. समथिंग इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पर एक है, ये भी चार्ज है. नाउ ये जो है फील्ड लाइंस असली हुई, ये ऐसे जाके यहाँ से जाके या दिस इज हाउ इट इज. एंड देन यहाँ पर the arrow is giving the direction of the field lines. The
electric field lines because of these two charges, and this is the charge Q1 and this is the charge Q2. ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है. Now we have, इसमें लिखा हुआ है these electrical field lines for a system of two charges Q1 and Q2 at two different points on. This is the system of two charges at two different points. ये तो दो different point है at two different points on the x-axis. Is shown above. फील्ड लाइंस सजेस्ट, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं. फील्ड लाइंस सजेस्ट, द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, Q1 is greater than Q2. B, Q1 is less than Q2. ठीक है. एंड C, electric field is zero at a finite distance, that is E is zero. मैं E लिख देता हूँ, E is zero at a finite distance to the left of Q1. और एक और ऑप्शन है D, E is zero at a finite distance to the right of Q, to the right of 0, E is 0 at a finite distance to the left of Q1, to the left of Q1, and at a finite distance to the right of Q2, to the right of Q2. ये है इस चार, ये these are the four alternatives which are given in this question, and this is the diagram. इसमें एक और ऐसे भी बना हुआ है, तो ऐसे मैं बना देता हूँ like that. ठीक है. So ये this question was asked in the JEE examination in 2010. The question which we have done just now, that was also asked in the, I think in the JEE examination in the in about this in I think 2010 or 2009. So now यहाँ से आप फिगर से आप देखेंगे तो ये जो चार्ज Q1 है, यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द चार्ज Q2. यहाँ पे ये जाके इस प्रकार से आप देख रहे हैं. सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो दी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस चार्ज इज मोर देन दी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज गोइंग टुवर्ड्स दिस चार्ज. मीन्स हियर द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड एंड हियर द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड. तो अब आपको ये भी पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ निकलती है. दैट इज द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज. ठीक है ना, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज और दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज. एंड फॉर द नेगेटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है बिकॉज द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड. तो यहाँ पर तो ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया. ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव होगा बिकॉज
द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पे दीज ऑल द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड इनवर्ड, ठीक है। सो therefore this charge is a negative charge because the field lines are directed inward, and this is a positive charge because the field lines are directed outward. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज़ क्लियर हो गई है कि this charge, the magnitude of the charge Q1 is greater than the magnitude of the charge Q2 because the number of field lines which are going away from this charge, that is the number of field lines which are coming out from this charge is more than the number of field lines, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर is more than the number of field lines which are coming this towards the charge, means the number of field lines which are directed inward that is directed towards the Q2 are less in comparison to the number of field lines which are directed outward from the charge Q1. So इसके मतलब ये हो गया कि this charge has the magnitude of this charge is more than the that is magnitude of Q1 is more than Q2. तो पहला ऑप्शन तो है हो गया कि that is Q1 is greater than Q2, इसका जो मैग्नीट्यूड है Q1 का it is greater than Q2, ये एक ऑप्शन तो हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। अब हमको लिखना है सी एंड डी में, ये आपके एक्स एक्सिस पे है, these two charges or on the x axis like that, ठीक है, ये आप इस प्रकार से, या दिस इज द x axis। सो अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज ये आई थिंक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था एंड इसमें ऐसा भी था कि एक ऑप्शंस की जगह पे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे आपकी 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं या 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि E is 0 एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड टू द राइट ऑफ Q2। अब इसमें आप ये देख लो, मैं कहता हूँ ये पॉइंट P है, लेट अस टेक इट, ठीक है, ऑन द x एक्सिस विच इज ऑन द राइट ऑफ Q2, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिकल जैसे आपने देखा, मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ सो दैट इट इज मोर क्लियर। ये जो बिकॉज इट इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है ना, माइनस है, सो दी फील्ड लाइंस विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स दैट इज टुवर्ड द चार्ज, ठीक है। तो ये आपका फील्ड लाइन जो है बिकॉज ऑफ दिस Q2 विल बी इक्वल, तो हम इसको लिख लेते हैं EQ2, ऐसे लिख लेते हैं। So it will be directed towards the charge Q2, whereas the field line, and because this is a positive charge, therefore the electric field or the intensity of this electric field will be, the direction of this electric field because of this charge Q1 will be this, ठीक है ना, बिकॉज ये हमको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है उसका डायरेक्शन इट इज़ अवे फ्रॉम द चार्ज, और it is means it is away from the charge, or you can say that it is directed outward. So because of that, ये आपका जो electric field है at this point P because of this charge Q1 will be directed in this direction, and the electric field because of this negative this negatively charged because of this negative charge this will be directed inward, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, बट यहाँ पर एक चीज़ और है, मान लीजिए दिस इज ये जो डिस्टेंस है आप देखेंगे, ये अगर मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस R है और ये आप डिस्टेंस और कुछ ले लीजिए, बेटा से ये आपके L है, ठीक है, ये L कर दिया मैंने और ये डिस्टेंस R कर दिया, सो ठीक है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, बट आपको ये पता है कि E that is the intensity of the this electric field is directly proportional to Q and inversely proportional to the distance between means that this distance of that क्या कहते हैं point from that respective charge। तो अभी electric field due to this charge Q1 जो है
ये आपका इट इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द दिस, प्रोपोर्शनल टू Q1 तो होगा ही होगा, Q1 हो जाएगा, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड Q1. अब ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इट इज टू लार्ज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट P एंड दिस चार्ज Q. तो जो ठीक दिस इज, अब ठीक है, ये वाला जो चार्ज, इसकी वैल्यू जो है इस दिस Q2 से ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम ये जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज Q2 फ्रॉम P is very less in comparison to the distance of the charge Q1 from this point P. तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाँ, तो अब क्या होगा कि क्योंकि E की वैल्यू जो है इसके, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस सेपरेटिंग, दैट इज R स्क्वायर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम. सो एंड बिकॉज this electric field is acting in the opposite direction, that EQ1 is acting in this direction and EQ2 is acting in this direction. So there may be a point on this axis of line that the electrical field at any point on this axis of line it might be zero. Zero क्यों हो सकता है? क्योंकि ठीक है, अगर क्योंकि इसकी ठीक है वैल्यू ज़्यादा है Q2 से, बट इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से वो भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, और इसकी जो डिस्टेंस है वो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम Q2 इज लेस. सो किसी ना किसी पॉइंट पर ये हो सकता है कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q2 will be equal to the intensity of electric field due to the charge Q1, because E is inversely proportional to the square of the distance separating them. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे E is zero at a finite distance to the right of Q1. तो ये वाला पॉइंट सही हो सकता है. C वाला जो पॉइंट है वो सही क्यों नहीं होगा? बिकॉज जैसे ही ये पॉइंट आपने यहाँ ले लिया, मान लीजिए P आपने यहाँ ले लिया, तो अब आप देखेंगे क्या होगा. The electric field due to the negative charge is directed inward. तो ये इस पॉइंट पे अगर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड हो गई, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इधर ही आएगा. सो Q2 के इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी हाँ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी. राइट, Q2 के राइट साइड में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होने की, that E can be equal to zero on the right side of Q2. So E can be zero at a finite distance to the right of Q2. E is zero at the finite distance to the left of Q1. अच्छा, लेफ्ट ऑफ Q1 तो मतलब हुआ कि आपका इधर, तो इधर तो होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा भी है, Q1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सॉरी Q1 की वैल्यू इससे ज़्यादा है, एंड सेकेंडली इसकी डिस्टेंस भी जो है वो कम है. तो यहाँ पर Q1 की वजह से इस पॉइंट P पे जो दैट E की वैल्यू आएगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू क्या है, Q2 की वैल्यू भी कम है, एंड सेकेंडली क्या है आपका दिस इट इज़ ए आपका दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड भी डायरेक्टेड इनवर्ड. ठीक है, इसकी वजह से, दैट इज EQ2 की वजह से, बट इसकी वैल्यू हमेशा इस पॉइंट पर ये EQ1 से हमेशा कम रहेगी, क्योंकि एक तो Q1 की वैल्यू ज़्यादा भी है, एंड सेकेंड थिंग इसका जो डिस्टेंस है, दिस चार्ज का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट P से काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Q1 एंड दिस P. सो द करेक्ट आंसर इज D एंड A. ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके जो है करेक्ट होंगे, एंड सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी डन. इट वॉज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको ये पता करना था कि कौन सा चार्ज इसमें पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है, और कौन किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वो इस डायग्राम से आपको जो है इंटरप्रेट करके निकालना था. ठीक है,
Now this is a very good question. You have a question here, and I will be making the figure first. अच्छा, यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन बनाया हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे क्यूब बनाया हुआ है ऐसे करके। ये वो 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर बनाया हुआ है डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6c इज प्लेस्ड इन द xy plane with its center at a with its center at okay, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि this is a disk of radius a/4 okay। So this is the disk, ये डिस्क है, इसका रेडियस है आपका a/4, मतलब ये दिस इज a/4। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -a/2 और 0 हो जाएगा, 0 हो ही जाएगा। ये आपका y है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। एंड दिस डिस्क हैज गॉट a यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ये जो डिस्क है, ये इसको मैं मार्क कर देता हूँ, लेट अस से एज A। डिस्क A हैज गॉट a uniformly distributed charge of 6 coulomb placed in the xy plane with its center at -a/2 at माइनस, ये आपका हो गया, आपका माइनस हो गया, a/2 0 हो गया। फिर है अ रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 8c इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस फ्रॉम, अच्छा x, अब ये आपका a/2 है, तो ये अगर बिकॉज नाउ दिस इज अ क्यूबिकल एनक्लोजर, सो ये आपका, अगर ये आपका जो डिस्टेंस है ये आपका हो गया a/2 यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये आपका हो गया a/2, तो ये भी आपका a/2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8c इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a। अच्छा, ये है आपका a/2, तो ये वाला भी पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आपका a/2 0 और a/4 यहाँ पर आ जाएगा, a/4 0। तो वो ये कह रहा है कि एक एंड जो रॉड का है, अ रॉड ऑफ लेंथ इज प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a/4 यहाँ से लेकर टू x इज इक्वल टू 5a/4। 5a/4 का मतलब हो गया इट इज मोर देन a। अब ये a आपका 4 है, ये a/2 हो गया, तो लेट से a यहाँ पर हो जाएगा समथिंग वेयर, तो ये आपकी रॉड हो गई, रॉड की पोजीशन हो गई। एक एंड आपका ये हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ मोटा, जस्ट just making this, just I am trying to depict this with the help of this thicker line, this is a, ठीक है, ये है, तो ये यहाँ हो गई आपकी पोजीशन हो गई उस रॉड की which is having a uniformly distributed charge of 8 coulomb। अब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज distributed uniformly on the rod, let's say इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, let's say PQ, on the rod PQ जो है which is given by 8 coulomb, ठीक है। ये हो गया दो चीज। फिर इसके बाद बोलते हैं ये कि 2 point charges of -7c and 3c are placed at a/4 and
at a by 4 and minus a by 4. So a by 4 and minus a by 4. So a by 4 आपको कौन सा हो गया, दैट इज एक्स, ये a by 4 हो गया, एंड माइनस a by 4. माइनस a by 4 आपको कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस भी आपकी a by 2 हो जाएगी. तो ये a by 4 यहाँ पर आ जाएगा. So there is one more charge which is placed here. Let us say I am denoting this point as B. So at this point यहाँ पर जो चार्ज है वो है आपका -7 कूलम. अब चार्ज of magnitude -7 coulomb is placed is at the coordinates given by, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये है आपका, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपका माइनस क्या ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं आपके a by 4, सॉरी a by 4 एंड माइनस a by 4, ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो गए, और इसकी जो चार्ज की वैल्यू है वो है आपकी -7 से. ठीक है, so this is the charge which is placed, a charge of -7 coulomb is placed at the point B whose coordinates are a by 4 and minus a by 4. And there is one charge which is placed at -3a by 4 and 3a by 4 also. So -3a by 4 क्या हुआ, it is means ये आपका डिस्टेंस a by 2 है, तो another charge जो a कितना हो जाएगा, this will be ये आपका ये वाला जो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आपका हो गया है आपका -a by 2 0, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये दिस वन. ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया -a by 2. सो -3a by 4 विच विल बी, ये आपका अगर ये a हो जाता है, लेट अस से आई एम जस्ट टेकिंग इट एज -a0, सो -3a by 4 विल बी समवेयर हियर. ठीक है, वो समवेयर आपको यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इट विल बी बिटवीन दिस पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज a b, इसको हम कर देते हैं, इसको बोलते c कर देता हूँ and d. So that charge will be lying somewhere between this point and this point, like this. Let's say this is the point, -3a by 4 and 0. ये है. So this is the charge configuration, and now the question is, find the electric flux through the cubical surface. Electric flux through the cubical surface is, यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं. वन इज -2c डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, b दिया हुआ है 2c बाई एप्सिलॉन नॉट, c दिया हुआ है 10c अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक और ऑप्शन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 12c बाई एप्सिलॉन नॉट, 12c बाई एप्सिलॉन नॉट. ये चार दिए हुए हैं. सो नाउ आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, उसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस. ठीक है, वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू Q divided by epsilon naught. So Q is what? It is the charge which is enclosed by that closed surface. तो यहाँ पे closed surface क्या है? Let us say ये हम इसको लिख लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ D A B C D है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ E F G H, E F G और H. So the charge enclosed by this cubicle, this one, that is EFG जिसको मैंने highlight किया है, the charge enclosed by this cubical surface will be what?
देखो इसके ऊपर जो चार्ज है दिया हुआ है, द डिस्क ए हैज गॉट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ 6 कूलम। तो आधी डिस्क तो बाहर है और आधी अंदर है इस क्यूबिकल की। तो इसके ऊपर अगर 6 चार्ज कूलम है तो बिकॉज इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये जो आधा पार्ट है ये दिस वन ये इस पे आपको हो जाएगा आपका 3 कूलम। ठीक है, ये 3 कूलम हो गया। अब आते हैं इसकी बात करते हैं। इस पूरे रॉड के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? हाँ, इट इज 8c। अब इसकी लेंथ कितनी है? वो a है। द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज a, यहां से लेके यहां तक ये a है। अब a लेंथ पर जो टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली वो हो गया आपका 8c। अब इस रॉड का कितना पार्ट अंदर है? वो हो गया, ये देखिए ये एक जो पॉइंट है इसका वो इट इज एट दी दिस कोऑर्डिनेट दैट इज a/4 0। ठीक है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका a/2 0। तो इसकी लेंथ हो गई आपकी a/4। सो अब द टोटल चार्ज ऑन दिस एंटायर लेंथ इज a। तो a/4 पे कितना चार्ज हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू a/4 इंटू a विच इज इक्वल टू 2। सॉरी, हाँ, या टोटल जो है आपकी लेंथ जो है a पर जो है जो चार्ज है वो है आपका 8 कूलम है। तो आपका इसकी अगर a/4 की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा? 8c डिवाइड बाई a इंटू a/4 विच इज इक्वल टू 2 एंड तो इट विल बी इक्वल टू 2c। तो इसके अंदर जो चार्ज आ गया वो हो गया 2c। ठीक है, बिकॉज द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पर पूरा जो चार्ज है आपके रॉड के ऊपर दैट इज 8 कूलम। सो द लेंथ ऑफ द रॉड इज a। सो a/4 पे चार्ज हो जाएगा आपका 2c। तो अंदर हो गया, एक तो 3c हो गया, 2c हो गया। एक आपका चार्ज यहाँ पर है -7c अंदर, और एक चार्ज आपका बाहर हो गया, ये है, ये यहाँ पर इस पॉइंट पे है, ये है। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो है आपका 3c। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स टू द क्यूबिकल सरफेस? द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्यूबिकल सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूबिकल सरफेस क्या हुआ? यहाँ पे लिख लेते हैं, by the cubical surface, ये हो जाएगा आपका 3c प्लस 2c माइनस 7c। ये वाला जो चार्ज है ये वाला, दिस इज आउटसाइड दिस क्यूबिकल सरफेस, तो इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन द जनरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। इसका कोई भी रोल इसमें होगा नहीं बिकॉज इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन दिस क्यूबिकल सरफेस। ठीक है, सो ये हो गया आपका 5c माइनस 7c कितना हो गया? -2c। सो मेरा अब आंसर आ जाता है कि दैट इज द फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्लक्स थ्रू द क्यूबिकल सरफेस through the cubical surface will be equal to -2c divided by epsilon naught, because this is the charge enclosed by the cubical surface. So answer is -2c divided by epsilon naught. So मेरा ये वाला आंसर हो गया सही, that is the option number A. So this question was also asked in the JEE examination in I think 2009 or 2010. And again this is it is a very simple question. यहाँ पे आपको खाली ये निकालना था कि इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बस। बिकॉज द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज गिवन बाय द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट. So in this way we have found this answer, and so this is all for today's session. And thank you very much for joining this session. And if you have any questions or doubts regarding to the regarding this topic, and you can definitely contact me at any moment of time. And
So I will be ending this session right now, and we will be meeting in the next session, that is the session number 4, maybe in a couple of days from now. So again, thank you very much and have a nice day.